Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 4, The Mughal Empire. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने मनसबदार और जागीरदार के बारे में पढ़ा था। उसके 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे। तो पेज नंबर 51 पर अभी हम 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे 51 पेज निकालेंगे 51। तो वहाँ से अभी हम 3rd पैराग्राफ है उसको लेंगे। द मनसबर military responsibilities required him to maintain a special number of savar or cavalrymen. The Manasbadar brought his cavalrymen for view, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. तो मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार received their salaries as revenue assignments called jagirs, which were somewhat like iktas. But unlike muktis, most manasbadar did not actually reside in or administer their jagirs. They only had rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while the manasbadar themselves served in some other part of the country. तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। उन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से बिन अपने जागीरों पर नहीं रखते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। In Akbar's reigns, their jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the मनसबदार। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। By Aurangzeb's region, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. There was also a huge increase in the number of manasbadar, which meant a long wait before they received a jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. तो औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा था।
These are other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. तो जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से प्राप्त एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वह जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगज़ेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे जब्त एंड जमींदार। The main sources of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is, the headman or the local chieftains. The Mughals used one term zamindar to describe all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains. तो अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया का या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। Akbar's revenue minister Todar Mal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10 years period. 1570 to 1580, on the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1517 से 1580 की कालावधि के कारण कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as Jabt. It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very carefully accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. तो इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। In some areas, the zamindar exercised a great deal of power. कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा
शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। The exploitation of Mughal administration could drive them to rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste aided in rebelling against Mughal authority. These peasants' revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व की चुनौती दी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जितना चैप्टर हमने पढ़ा है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको अंडरलाइन करके कॉपी पे लिख के याद करने हैं। Thank you and have a nice day.